को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं हल्का डेराबस्सी में। आज हमसे जुड़ चुके हैं रिपब्लिकन पार्टी के सरबजीत जी। जानते हैं उनसे इलेक्शन लड़ने क्या क्या मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और जनता की किस प्रकार सेवा करेंगे। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਕੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਐਤਕੀ कैंडिडेट है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ रामदास अटावले तो। पार्टी के मतलब मकसद क्या है पार्टी का? पार्टी का मकसद ये है, जो पार्टी ने हमें मान सम्मान दिया है, हमें टिकट दी है, हमारे समाज को टिकट दी है, हमारी यही गर्व की बात है हमारे लिए। तो ये पार्टी कहाँ की है, लोकल है या फिर नेशनल? ये लोकल नेशनल लेवल की पार्टी है। हमारे रामदास अटावले जी केंद्र मिनिस्टर हैं इस समय जी मौजूदा, और उनके द्वारा राज्यसभा मेंबर भी हैं, उनके द्वारा हमें चुना गया है यहाँ। और जगह भी चुने गए होंगे मतलब? और भी जगह चुने गए हैं। पूरी मोहाली में कितने कैंडिडेट उतारे हैं? पूरे मोहाली में जी, मोहाली तो अपना एक ही कैंडिडेट है मोहाली में, तो मैं आप ही है बस। बिल्कुल बिल्कुल सब पार्टी ने साडे ते विश्वास बनाया, उदे ਅਸੀਂ पार्टी ਤੇ विश्वास बनाते हैं। वैसे तो मैं आज़ादी लड़न की घोषणा कर चुके थे आज तो 2 साल पहला। साडे जगजीत जी बैठे हैं, मेरे वीरू भी बैठे हैं, दीपक भाई बैठे हैं, सारे सीनियर बैठे हैं, साडे तो बड़े हैं। ठीक है, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੋਟਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਰਾਜਨੇਤਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ 36% ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ 1% ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, 7 ਕਰੋੜ ਦੀ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪੈਸਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਬੜੇ ਬਿਲਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾ 8-8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ 8 ਕਰੋੜ 9 ਕਰੋੜ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਸਾਲ 'ਚ 20 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। डबल करेंगे अपना? हाँ, डबल करेंगे। जेड़ा बंदा डबल पैसे करेगा, अब पहला 7 करोड़ लाएगा, बाद चो डबल करेगा, तानू लगदा है वो साडे समाज दा भला कर देगा। वो विकास ही नहीं कर सकता। बुजुर्गां दी पेंशनां लवा देगा, या साडे नालियां बना देगा, गलियां नालियां बना देगा, या फिर साडा कोई रोजगार दे देगा। क्यों? जे साडा समाज दा कोई व्यक्ति उन्हां दी कोठी च जांदा है भी मैं तानू वोट पाई है जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਨੇਤਾ ਬਣਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ। 10 ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਏ ਆ, ਟੈਂਪੂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਆਫਿਸ ਲੈ ਲਏ, ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज तक इलेक्शन नहीं जीते, पर उन्होंने कभी हौसला भी नहीं हारा। उसी तरीके नाल असीं वर्क किया। असीं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਟੈਂਪੂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਨਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਵਾਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਪੰਜਾ ਤੇ ਤਕੜੀ, ਬਸ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ही नहीं पता की है। आपकी पार्टी के फाउंडर कौन है? अब रामदास अटावले जी। कहाँ से है जी? कहाँ से? ये अपना महाराष्ट्र जी हैं जी। महाराष्ट्र से? हाँ जी, अभी के अपना राज्यसभा मेंबर। जैसे आपने बात कही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी चुनाव नहीं जीते, हाँ जी। उन्होंने तो वो काम करके दिखाए हैं जो कोई नहीं कर सकता। हाँ जी। आज जो आपको टिकट दिया गया है, टिकट आप नेता बने हैं, कुर्सी पर बैठने लायक बने हैं, तो उन्हीं की बदौलत बने हैं। उन्होंने संघर्ष किया, आप भी संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और वो एक मतलब अपने आप में उन्होंने बहुत कुछ किया, उनकी जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। ठीक है सर, उन्होंने लिखा भी है, पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो। जैसे कि आपने अभी बात कही है कि हम घर डोर टू डोर जा रहे हैं, डोर टू डोर जाके आपने कितने गांव में अभी तक सर्वे किया है, कितने गांव में जाकर अपने समस्याओं को रूबरू हुए हैं, आप हमारे संज्ञान में डालें, और ताकि
मीडिया के संज्ञान में डलेगी तो वो आपकी बात ऑटोमेटिक फैलेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसे जैसे हम गांव में जा रहे हैं ना, जी। हर गांव में गए हैं, लगा लो 3 बस्तियां होती हैं हर गांव जी। में, हर गांव में होती है। वाल्मीकि, रविदास, जर्नल हो गए, हर गांव में है ये। जब हम बड़े जर्नल में जाते हैं तो उनकी एक एक किले में तो कोठियां हैं, ठीक है जी। जब हम रविदास में जाते हैं, महल्ले में जाते हैं, चलो वो थोड़े से उनसे ठीक ठीक आ जाते हैं। और जब हम अपने इलाके में जाते हैं, अपने समाज की माजरी में जाते हैं, वाल्मीकि समाज की माजरी में जाते हैं, तो 3 फुट 2 फुट की गली होगी, ठीक है जी। आधे मरले, एक मरले में घर होएगा, उस घर में 10 मेंबर होंगे, ठीक है जी। और उसी घर में 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल, 100-100 साल के बुजुर्ग रह रहे हैं, ठीक है। उनकी शादियां हुई हैं और खुद आप खुद देख सकते हो एक मरले में लाइफ कहाँ गुजारी जाती है। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है इसका? इसका रीजन हमारा समाज खुद है, उनको खुद नहीं पता, उनको खुद हमारा नहीं पता। समाज जागरूक नहीं है। जागरूक नहीं है, कुछ जागरूक है, कुछ जागरूक नहीं है, ठीक है। और कुछ आपको पता ही है अभी कैसे चल रहा है, ठीक है जी। जैसे कि हम बात करें, आपकी विधानसभा में कितने गांव आते हैं टोटल, और कितने गांव में आपने सर्वे कर लिया, कितने गांव अभी पेंडिंग पड़े हैं? 142 आते हैं जी, लगभग 142 के करीब गांव आते हैं, बाकी सोसाइटी है, ठीक है। 2,70,000 से अब वोट है यहाँ पर, ठीक है। सबसे बड़ा हल्का है ये पंजाब का। सभी गांव में आप जा रहे हैं, जैसे कि आपको रिस्पांस कैसे मिल रहा है, क्या आश्वासन दे रहे हैं लोग? देखो जी, अगर हम समाज की बात करें तो समाज के पास जा रहे हैं तो समाज तो पहले हमें गले लगाता है। जब भी हम उनसे बात एक बार करते भी समाज के हैं हम नौजवानों को भी मौका दो। हमारे सारे नौजवान नशे की तरफ जा रहे हैं। अगर हम राजनीति की लाइन पकड़ते हैं, हमारा समाज राजनीति की लाइन पकड़ता है तो हम सुधर सकते हैं, हमारा समाज सुधर सकता है। 5 साल हमने कांग्रेस को देखा, पहले अकाली को भी देखा, पर अब मेरा समाज सारा देख रहा है कि भी सारे हमारे घर आके, जिस गली में वो आज तक नहीं है, उस गली में आके उस बुजुर्ग के पैरी हाथ लगा रहे हैं भी हमें वोट डालो। मैं अपने समाज से ये विनती करना चाहता हूँ कि आपके पैरी हाथ लगाएं, ठीक है। आपको कोई भी लालच दें, कोई भी वोट लालच से नहीं देनी है। एक बार आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तरफ देखो, हमारे समाज के लिए उन्होंने कितने बलिदान दिए हैं, उनकी तरफ देखो। और अगर आप अपनी वोट बेचते हो तो वोट बेच के अगर आप वोट डालते हो तो आपने फिर समाज के ऊपर कलंक नहीं डालना कि हमारा समाज ऐसा है, हमारी गलियां छोटी हैं, कच्ची नालियां या कच्चे मकान है। क्यों? क्योंकि अगर आप वोट अपनी बेचोगे तो जो वोट खरीदेगा वो कभी भी आपका काम नहीं करेगा। जैसा कि आपने सुना और देखा, इसी के साथ अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम आपकी आवाज बने हैं और बने रहेंगे। इसी के साथ बने रहे मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रदीप के साथ। देखते रहें स्पेशल रिपोर्ट।